ایگزیکٹو نے یہ مسائل حل کیے اور اب جو ہے مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم اس تمام عمل کا جو ہے مکمل کرتے ہوئے اعلان کریں گے. اقبال جعفری صاحب چیئرمین الیکشن کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے اعلان کریں گے تمام منتخب ہونے والے نمائندوں کے حوالے سے. بہت شکریہ. السلام علیکم دوست. یہ ہمارا ہمیں حکم ہوا تھا کہ ہم اس کو الیکشن میں موجودہ پارٹی اور آنے والی باڈی اور ہماری بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں یہ الیکشن ہم نے کوشش کی اپنے اس کو ذمہ داری کو اپنے طریقے سے نبھایا جائے اور آپ سب کے تعاون سے اور آپ کے سب کی پارٹیسپیشن سے ماشاء اللہ بہت اچھا رہا یہ سالہ سلسلہ. اور ہم باہمی جس کو کہتے ہیں اعتماد کہیں گے کیا کہیں گے باہمی ایک گفت و شنید سے بغیر اس کے الیکشن کے یہ ہمارا مرحلہ مکمل ہوا اور ہماری جو نئی باڈی آئی منتخب ہوئی ہے اس کا میں اعلان کرتا ہوں. ہم نے یہ سلسلہ 23 فروری کو شروع کیا تھا. نہیں سوری 18 جنوری سے شروع ہے ہمارا یہ سلسلہ جس میں ہم نے اس میں نامینیشن لی. پھر نامینیشن ہمیں کافی دیر تک آتے رہی بلکہ ایک نامینیشن بڑی مزیدار رہی کہ وہ مجھے پرسوں ملی ہے جو مطلب ان صاحب نے نام انہوں نے جو تاریخ تھی 18 تاریخ کو انہوں نے لاہور سے پوسٹ کیا مجھے وہ اپنی نامینیشن. بہرحال باقی جتنی رہی یہ ہمیں ٹوٹل نامینیشن آئی تھی کوئی 262 آئیں اور اس میں سے پھر ان پہ جو وڈرال وغیرہ ہوئے کاغذات کی چھانٹی ہوئی اس کے بعد وڈرال ہوئے. اس کے بعد جو صورتحال بنی اس میں پھر ہم وڈرال کے بعد صورتحال بنی کہ اس میں الیکشن کا وہ نہیں رہا صرف ان اپوز ہو گئے سارے. تو میں ان اپوز بتا دیتا ہوں. اس میں ایف ای سی میں ہمارے 25 نمائندے الیکٹ ہوئے ہیں اور اس کے لیے کچھ 113 لوگوں جو تھے امیدوار تھے ہمارے اس کے لیے. 113 میں سے 25 امیدوار الیکٹ ہوئے ہیں جو جن کے نام ہیں عبد الرحمن لالا رحمان صاحب. دوسرے علی رضا علوی صاحب, اعجاز مقبول صاحب, ایوب جان سرندی صاحب, انور رضا صاحب, ہارون خالد صاحب, فوزیہ شاہد صاحبہ, امتیاز خان فاران ہمارے کراچی کے بھائی ہیں. اچھا پھر ہے احسان الحق صاحب, ایم عامر شہزاد صاحب, خورشید عباسی صاحب, میاں سبیع الرحمان صاحب, مخدوم احمد بلال صاحب, ندیم جاوید صاحب, محمد اقبال صاحب میرے ہمراہ, نصر اللہ وسیر صاحب, ہمارے صحافیوں کے جو جھومر کہلاتے ہیں ہمارے سابق جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں سر جنرل سیکرٹری ناصر زیدی صاحب, رانا شفیق خان پسروری صاحب, قدیر سکندر صاحب, سلیم شاہد, رؤوف مان اور شہزادہ ذوالفقار, شفیق آوان صاحب, نظر عباس اور عمیر یاسر. یہ 25 افراد ہیں, 25 صحافی ہیں جو ایف ای سی کے ممبر منتخب ہو گئے. اچھا ہماری جو یہ فائنانس کی سیٹ تھی, فائنانس کے لیے کتنے تھے؟ فائنانس کے لیے 29 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے تھے 29. اس میں سے ایک فائنانس کا سیکرٹری بننا تھا. اس میں سے سعید جان لالا
اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی 4 نشستوں کے لیے 40 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے، جس میں سے وڈرال کے بعد جمشید رضوانی صاحب، جاوید اسکر، جاوید اسکر، محمد شاہد چودھری، محمد شاہد چودھری، آگے آتے تھے اور نور الہی بگٹی صاحب، یہ 4 جو ہیں یہ بلا مقابلہ منتخب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وائس پریزیڈنٹ کی 4 سیٹوں کے لیے اتنے امیدوار تھے، 23 نائب صدور کے لیے 43 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کرائے، جس میں سے 43 میں سے 4 منتخب۔ حبیب الرحمان صاحب، خالد عیسیٰ کھوکر صاحب، خالد عیسیٰ کھوکر صاحب، حیدرآباد کی جان خالد کھوکر صاحب۔ دوسرے محمد عیسیٰ صاحب، محمد عیسیٰ ترین صاحب، محمد عیسیٰ، ہمارے پاس کاغذ میں صرف عیسیٰ ہی ہے۔ پہلے وہ نور الہی بگٹی صاحب آ جائیں۔ اسسٹنٹ سیکرٹری ہے نور الہی بگٹی صاحب، نور الہی بگٹی صاحب۔ شاہد چودھری صاحب، شاہد چودھری صاحب اسسٹنٹ سیکرٹری، دونوں سے اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں۔ ناصر حسین، محمد عیسیٰ آگے نا، محمد عیسیٰ، محمد عیسیٰ صاحب، محمد عیسیٰ ترین صاحب آ جائیں۔ بس عیسیٰ ہی لکھا ہوتا ہے ان کے فارم میں۔ ترین صاحب آ جائیں، جی محمد عیسیٰ ترین صاحب۔ محمد عیسیٰ ترین صاحب آ جائیں، راستہ دے دیں یار۔ بیٹا آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، جگہ بنا دیں آپ۔ محمد عیسیٰ ترین ادھر ہے، سامنے آ جائیں۔ پھر ہیں چوتھے جو ہیں وہ ناصر حسین صاحب، پشاور سے، ناصر حسین، پشاور سے تعلق ہے، خیبر یونین آف بزنس سے تعلق ہے۔ ان کو تو ہم نے نام دیتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل کی سیٹ کے لیے تقریباً تھے ہمارے پاس 23 امیدوار نے کاغذات جمع کرائے، جس میں سے لاہور سے ہمارے ارشد انصاری صاحب، ایک انصاری سب پہ بھاری، 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 سب پہ بھاری، سب پہ بھاری۔
सारे थोड़ा सा नीचे हो जाए और ऐलान होने दे, फिर उसके बाद आप अपना जश्न कीजिएगा। सबसे अहम ऐलान जिसका सबको इंतजार प्लीज होगा, हेलो खासकर एक मिनट एक सदर की सीट के लिए 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिसमें से जनाब अफजल भट्ट साहब कराची से खैबर तक अफजल भट्ट, 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 जरा एक मिनट के लिए जरा अगर कराची से खैबर तक कराची से खैबर तक जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, जिंदा है तूने भी खाके, जिंदा है जेबों में जाके, जिंदा है हंसों में देखा, जिंदा है अब्दुल भी देखो, जिंदा है मंजूर में देखा, जिंदा है शैतान ने देखा, जिंदा है शैतान ने देखा, जिंदा है मुशरफ ने देखा, जिंदा है अब्बास भी देखे, जिंदा है शब्बास भी देखे, जिंदा है दिलवाल देखे, जिंदा है सरदारी देखे, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी, जेलों में जाके तोड़े भी खाके, जिंदा है सहाफी, हिक्किनारा 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 एक मिनट अगर तमाम दोस्तों से दरखास्त है जरा थोड़ी देर के लिए भाई साहब एक मिनट प्लीज थोड़ी देर सारे अपनी विशिष्टों पर तशरीफ रखिए। तमाम दोस्तों से दरखास्त है तमाम दोस्त विशिष्टों में तशरीफ रखिए। अभी 2 मिनट के बाद एक मिनट अगर सारे दोस्त
तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो आइए माइक कैमरों के सामने से हट जाएं, मीडिया के कैमरों के सामने से हट जाएं सारे लोग। यार नौसा दीजिए आए ऊपर मैं जाऊंगा स्टेज खाली कर दें प्लीज, ये स्टेज खाली कर दें। दोस्तों को गुजारिश है कि स्टेज साहब और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तशरीफ रखें, ये स्टेज खाली कर दें भाई प्लीज। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो बैठ जाएं, स्टेज खाली कर दें। मुंतखब जो मुंतखब सारे लोग हैं, नुमाइंदे हैं, जरा स्टेज पे तशरीफ लाएं। मुंतखब नुमाइंदे हमारी ऑफिसी वो स्टेज पे तशरीफ लाए, तो साहब आए। सिर्फ बाकी जो सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे जो है वो स्टेज पे आगे बाकी नीचे के अलावा स्टेज पे कोई बंदा ना हो। जो सलीम शाहिद साहब तशरीफ पूरा ग्रुप वाले में दे। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम दोस्तों से मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी डिसिप्लिन की पाबंदी करें। अभी कुछ देर के बाद ये सारी लीडरशिप आपके दरमियान मौजूद होगी और आप जी भर के मुबारकबाद भी दीजिएगा और नारेबाजी का भी आपको मौका मिलेगा। इस वक्त हमने नेशनल मीडिया को बुलाया हुआ है और आपकी नौ मुंतखब बॉडी जो है वो आपसे मुखातिब होना चाहती है और जो मुंतखब अफराद हैं उनको उनमें से कोई भी जो है नीचे ना रह जाए। जितने मुंतखब बॉडी के मेंबरान हैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं। जी अब दोस्तों बीडीएम के 3 दिन का जो मेला था वो अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामजन है। हमारी पीएफयूजे की आइंदा 2 साल की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपके सामने स्टेज पर मौजूद है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इन तमाम मुंतखब अफराद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं गुजारिश करूंगा पीएफयूजे के जो हमारे खजानची मुंतखब हुए हैं लाला असद पठान से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब लाला असद पठान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से मुंसलिक तमाम यूजेस के मुंतखब डेलीगेट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझ नाचीज़ वर्कर पर एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जर्नलिस्टों की तंजीम में मुंतखब करके एक अहम जिम्मेदारी पे बर्जमान किया है। साथियों, इस वक्त भी हम सीखने के ही अमल से गुजर रहे हैं, मगर एक बात की आपको यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि आपके एतमाद को कभी बेचेंगे नहीं, इसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। ये जो कमिटमेंट है आपके साथ और आपकी हमारे साथ जो कमिटमेंट है और हम सबकी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ और इस नजरिए के साथ जो कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट से मुंसलिक लोग न कभी झुकते हैं, न डरते हैं, न बिकते हैं। और उसका 3 रोजा जो 6 रोजा इजलास नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बीडीएम की सूरत में हुआ, वो इस बात की अक्कासी करता है और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया और दीगर जराए से इसको देखा होगा कि पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीम और पाकिस्तान के मीडिया वर्कर्स, मीडिया हाउसेस और मीडिया से मुंसलिक तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए अगरचे कोई पहली
सीसा पिलाई दीवार है तो वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। कराची प्रेस क्लब में एक हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें पीबीए के दोस्त भी आए थे, एमएन के दोस्त भी आए थे, बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर साथी हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे। पीएफयूजे की तरफ से मैं भी नुमाइंदगी कर रहा था। मैंने वहां पर मालकान से एक बात कही कि सिर्फ आप ना कहने की आदत डाल दें या एक दफा कोशिश करने की कोशिश करें कि आप नो भी कहें। जब आप हर बात मन मानते जाएंगे तो वो आपसे, हर ताकतवर ग्रोह आपसे मजीद डिमांड करेगा अपनी मर्जी की। आप बाकी सारे मामला छोड़ दें। सड़कों की लड़ाई हमने अपने उन आइन के, इस पीएफयूजे के बानियों से सीखी है जिन्होंने कोड़े खाए, जेलें काटी, ना मसाइब हालात से गुजरे, मुलाजमतों से निकाले गए, मगर कभी भी आजादी सहाफत के हक से दस्तबरदार नहीं हुए। तो हम किस तरह हो सकते हैं? हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपनी टांगों में जान तो पैदा करें। अब एक ही दिन नहीं गुजरा था, दूसरे दिन आधे से ज्यादा मालकान जो है वो उन्होंने राय फरार अख्तियार किया। तो हम उनको, उनके गम में भी बराबर के शरीक है। हम ये नहीं कहते कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ कंधा कंधे में मिला के चले, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, मगर हम ये कहते हैं कि वो कम से कम बहुत कंप्रोमाइज उन्होंने कर लिया। अब कहीं स्टॉप करने की जरूरत है, और अगर चाहे स्टॉप नहीं किया तो वो अपने इन अरबों रुपए के इदारों से फारिग हो जाएंगे। ऐसी भी मिसालें मुल्क में मौजूद हैं। और गैर एलानिया सेंसरशिप इस वक्त भी लागू है, न सिर्फ अखबारात पे लागू है, नेशनल टीवी पे लागू है, और अब तो पीका एक्ट के तहत जो है वो हमारी सोशल मीडिया पे भी लागू हो गई। तो साथियों, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ओहदा लेना किसी इंटरनेशनल एनजीओ का ओहदा नहीं है। ये किसी सियासी पार्टी का ओहदा नहीं है कि आगे चल के हमने पावर में आना है, इक़्तिदार में आना है और इक़्तिदार के मजे लूटने हैं। ये मुस्तकिल एक जद्दोजहद का नाम है, और डे बाय डे जिस तरह हमारे लिए मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, हमारे कलम के मजदूरों के लिए मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, तो पीएफयूजे की क़यादत पे मजीद जिम्मेदारियां आती जा रही हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम भट्ट साहब की क़यादत में, अरशद अंसारी साहब की क़यादत में, और आप तमाम सीनियर दोस्तों की मुशावरत से और जूनियर दोस्तों की अपने साथ कंधा कंधे में मिलाकर चलने की सूरत में आपको हर किस्म के नामसाइब हालात से न सिर्फ हम खुश असलूबी से लड़के गुजरेंगे, जीत के गुजरेंगे, और इंशाअल्लाह अपने तमाम हकूक हासिल करके गुजरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इलेक्शन कमेटी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं उनसे पहले जो हमारे चेयरमैन थे जिन्होंने 3 दिन हमारा ये जो इजलास कंडक्ट किया, मुबारक ज़ेब साहब और शफीक अवान साहब और जयप्रकाश साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हम उनसे बहुत कुछ सीखे भी हैं। और जो हमारे जूनियर साथी यहाँ पर आए, उन्होंने भी, उनका भी मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन 3 दिनों में हमने ये हाल भरपूर तरीके से भरा हुआ देखा, और लोगों की पार्टिसिपेशन बाकायदा जुड़ी हुई थी पीएफयूजे के साथ, तमाम मसाइल के साथ जुड़ी हुई थी। और यही जो हमारी जद्दोजहद को मजबूत करता है, ताकत बख्शती है, यही कुव्वत बख्शती है जब आप सब मिलकर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे से सवाल भी करते हैं और हमें जवाब देने के लिए मजबूर भी करते हैं। और हम आपके लिए हमेशा जवाब दे रहेंगे, चाहे वो ओहदे पे हो या ना हो। हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कारकुन हैं, और इंशाअल्लाह ओहदों की वजह से हम पीएफयूजे से मुंसलिक नहीं है, हम नजरियाती बुनियादों पर मुंसलिक है, और ये नजरियात हमारे पीएफयूजे के आइन के साथ मुंसलिक है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। लाला असद पठान कह रहे थे कि ये ओहदे, ये मुसलसल बेहद ममनून हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक जमहूरी प्रोसेस में
हिस्सा लिया और अपना भरपूर 3 रोज़ यहाँ पे, जिस तरह लाला असद पठान कह रहे थे कि उन्होंने भरपूर तरीके से यहाँ अपनी नुमाइंदगी दी और हर जितना हमारा एजेंडा जो था उस एजेंडे पे अपना भरपूर अपनी जो है नुमाइंदगी वो शो की। सेकेंडली, मैं इंतहाई मशकूर हूँ इलेक्शन कमेटी का, जाफरी साहब की सरबराही में बनाई जाने वाली इलेक्शन कमेटी, शहरियार साहब आपका, मायरा इमरान आपका और जितने भी हमारे इसमें इलेक्शन कमेटी था उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी दिन रात की कोशिश करके बड़ी जाबशानी से इलेक्शन के इनेकात को खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया। मैं बेहद मशकूर हूँ इलेक्शन कमेटी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का। सेकेंडली, मैं पैनल ऑफ चेयरमैन मुबारक जेब साहब आपका, शफीक अवान साहब, जे प्रकाश साहब, आपने इम्प्रेस किया और अब मैं यकीन करें कि ये सीखने का अमल तो जारी रहता है, हर बंदा सीखता है और कोई भी आंकड़े कुल नहीं, लेकिन मैंने आपसे बड़ा कुछ सीखा और लोगों ने भी बड़ा कुछ सीखा। आपकी ग्रिप जो थी वो बहुत अच्छी ग्रिप थी, पूरे अपने कमांड थी अपनी इस चीज़ में। मैं आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने 3 रोज़ जो हैं इसको बड़ा एहसन तरीके से निभाया, चलाया और पूरी तरह से आपकी नज़र थी। और सेकेंडली, तालियां मारी जाएं RUJ के लिए, बड़े अच्छे निज़ामात थे रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। मैं इनसे खुद भरपूर उनसे तालियां खुद मारता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम कराए। देखें, ट्रांसपेरेंसी और स्पेशली मैं तमाम मशकूर हूँ आपके नेशनल प्रेस क्लब के मुलाजमीन का, बहुत उन्होंने भी काम किया। ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है हम लड़ते हैं, हमें पता है कि मुलाजमीन बेचारे सारी रात जो है वो बैठ के काम करते हैं। मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ और बल्कि मैं तो सेक्रेटरी साहब आपसे कहूँगा उनके लिए कोई ऑनरेरियम जो है उनको ज़रूर दिया जाए। और ये लेकिन ये है कि मैं यकीन करें कि मैं मुलाजमीन के लिए अनाउंसमेंट जरूर करना चाहता हूँ उनके लिए कि वो उन लोगों को कम से कम इंकरेजमेंट होनी चाहिए कि उन लोगों ने वहाँ पे यहाँ पे काम किया, हमारी तक बातें भी बर्दाश्त की, सारी रात यहाँ वो बैठे रहे। मैं आपको हैंडसम अमाउंट जो है उनके लिए दी जाएगी, ये उनका राइट है, ये उनका हक है। आपको सिर्फ शाबाश दी जाएगी, उनको पैसे दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाला साहब ने बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की और मैं अपनी तमाम इस पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की आज जो 2 साल की हमारी बॉडी मुंतखब हुई है, मैं इनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इस बॉडी में FEC में ऐसे नाम हैं, मैं तो अपने सामने उनको बहुत बड़ा समझता हूँ और अपने आप को उनके सामने कुछ नहीं समझता। इसमें इतने नासर जैदी साहब जैसे लोग हैं, फौजर शाहिद साहब जैसे हैं, अनवर रजा साहब जैसे लोग हैं, अली अलवी शफीक अवान साहब, बड़े बड़े सीनियर लोग इसमें मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी हमारी जो FEC है वो बड़ी पुख्ता किस्म की बनी है और बल्कि हमें तो इनसे सीखने का मौका मिलेगा। देखें, चैलेंजेस इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री को बहुत चैलेंजेस का सामना है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामसाइद हालात में जिस तरह ये हमारे लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं, तो हमें इससे भी ये मुकाबला है, हमें मालकान का सामना है, हमें वर्कर्स की जो वेलफेयर है, वर्कर्स के जो मामलात हैं, जो छांटियाँ हैं, जो उनके वाजबात हैं, जो उनकी तनख्वाहें हैं, उसके लिए भी हमें सदर साहब हमें बिल्कुल एक ऐसी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम इनके तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, इनकी जॉब्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, इनके मामलात का, वेलफेयर का। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ये वाहिद नुमाइंदा वाकई तंजीम है पूरे पाकिस्तान की कि जिसने अपने काम से साबित किया है और ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी ये जो तंजीम है, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से हम लेके इन सबको चलेंगे। दूसरा, अभी हमें चूँकि इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हुई, इसमें जो हमारे प्रपोजल्स पेश की गई, इंशाल्लाह भी FEC का इजलास भी होगा, हम उसको भी पूरा फुलफिल करेंगे और टाइमली। और सबसे पहली बात तो ये कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो मर्कजी दफ्तर है वो इस्लामाबाद में बनाया जाएगा और इसकी बहुत ज़रूरत है।
یہ کم از کم ہمارے جو معاملات ہیں وہ اس کی ٹیک کر ذرا آ رہی جو ہے وہ کرے گی، لیکن پی ایف یو جے کا دفتر جو ہے مرکزی سیکریٹریٹ وہ ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کو ملنا چاہیے، یہاں پہ لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، اور اس لیے کہ ہمارے معاملات بھی ٹھیک چل سکیں گے۔ ایک سیکریٹریٹ ہوگا تو پوری کی جو باڈی ہے وہ اس کو چلا بھی سکے گی۔ تو پیچھے پیکا کا ایکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر، اور جس میں پی ایف یو نے جس طرح اس ڈریکونین لا کا مقابلہ کیا، اور یہیں سے افضل بٹ صاحب کی کال جاتی تھی پورے پاکستان میں جو ہے، اس پہ مظاہرے ہوئے، ہم کھڑے ہوئے، بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے۔ آئندہ میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ پی ایف یو جے اس پہ بات بھی کریں گے، اور جو لائن آف ایکشن ہوگا انشاءاللہ وہ پورے پاکستان میں اس کے ساتھ چلیں گے، اس کو کام کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ پیکا جو ہے وہ ایک جو یہ لا ہے اس پہ بہت بات ہوئی، مدر صاحب نے بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبارک زیب نے آج اس پہ جو اتنی تفصیلاً اور اس پہ ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ، جس طرح ہمیں یہ وزراء روز ٹیلی ویژن پہ آگے کہتے ہیں کہ ہمارے شک ٹو شک بات کریں، آج میرا خیال ہے مبارک زیب خان نے شک ٹو شک جواب دیا اس کا، اور پوری دنیا سے اس کی اکٹھا کر کے اور پوری دنیا سے بتایا کہ یہ لاز کہاں بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، کس طرح امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پہلا بنا یہ کرمنل لا ہے، جس کے ساتھ کام یہ ہے کہ یہ پیکا پریونشن کرائم ایکٹ، کرائمز ایکٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مبارک زیب صاحب نے کہا کہ کرائمز مطلب یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیفیمیشن لا کو یا اپنے آپ کے جو لاز ہے اس کو مضبوط کریں، نہ صرف آپ ایک ٹیکا لگائیں اور ہمارا گلا دبانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پورا مقابلہ کریں گے، بڑے بڑے عامر آئر وہ نہیں دبا سکے، اور یہ بھی جو یہ باغمتی کا کنبہ جو بنا ہوا ہے، انہوں نے بھی جو یہ ایک مضمون کوشش کی ہے، انشاءاللہ تعالی پی ایف جو اس کو ناکام کرے گی۔ ہم ایسا کوئی بھی قانون ہم نہیں مانتے جس سے شرعی آزادی سلب ہو، جس سے آزادی صحافت، آزادی اظہار پہ کوئی قطرہ لگے، ہم کسی ایسے قانون کو نہیں مانتے۔ انشاءاللہ تعالی اسی ایسے قوانین کا پورا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پی ایف یو جے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے پاکستان بھر سے آنے والے 450 کے قریب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود دور دراز علاقوں سے سفر کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ 3 دن یہاں 18 گھنٹے میٹنگوں کے دوران میڈیا کے متعلق ہونے والے میٹنگز میں حصہ لیا، اور آج ایک مرتبہ پھر ہمیں پی ایف جے کی ذمہ داریوں سے نوازا۔ عزیز دوستو، موجودہ حالات میں جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ان چیلنجز کی موجودگی میں پی ایف جے کا عہدہ سنبھالنا بظاہر تو یہ آپ کو پھولوں کی مالا نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک مسائل کا انبار بھی ہے، یہ کانٹوں کی سیج بھی ہے، کیونکہ ہمیں جن بڑے محاذوں پر پی ایف یو جے کام کرتی ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے محاذ اس وقت زمین بوس ہونے کے قریب ہے، کہ پی ایف یو جے ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ انسانی حقوق کی لڑائی ہماری لڑائی ہے،
और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त इंसानी हकूक की पामाली किस सतह तक पहुंच चुकी है। हम ये समझते हैं कि आजाद अदलिया की लड़ाई हमारी लड़ाई है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी किन हालात से गुजर रही है। हम ये सब PFJ समझती है कि शहरी आजादियों की लड़ाई और फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई हमारी लड़ाई है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस फ्रीडम किस हालत को पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हमें जिन मुआशी हालात का सामना है कि एक तरफ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ से इजादात आ रही है कि जहां 20 आदमी काम करते थे वहां एक मशीन काम करना शुरू कर देती है। ये ग्राउंड रियलिटी है और ये वक्त और हालात का तकाजा है कि टेक्नोलॉजी जहां सैकड़ों मुलाजमतें हजम करती है वहां हजारों मुलाजमतों को जन्म भी देती है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि डिजिटल मीडिया के इस इनकलाबी दौर में हम अपने वो जर्नलिस्ट साथी जो अखबारात में काम करते रहे, जो टीवी चैनल पे काम करते रहे, उनको किस तरह हमने इस काबिल बनाना है कि वो जो डिजिटल मीडिया को यूज भी कर सके और इससे अपने हालात कार भी बेहतर कर सके। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह सो कॉल्ड जो फेक न्यूज की बात की जाती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट के लिए चैलेंज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और इदारों के लिए चैलेंज नहीं है। उन सब ने फेक न्यूज की फैक्ट्रियां अपनी अपनी खोली हुई है, जहां वक्त जरूरत वो ये काम करते हैं। इसलिए हमने PFUJ के आईन में तरमीम करते हुए ये फैसला किया है कि डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हमारे जो साथी हैं उन्हें PFJ के फोल्डर में लाया जाएगा। ये PFJ ने तरमीम कर ली है। अब डिजिटल मीडिया के लोग PFJ का हिस्सा बन सकेंगे। उसके लिए इस आईनी तरमीम के बाद जाहिर है इसके रूल्स बनेंगे। PFJ एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी जो अखबारी कारकुनों के लिए है, जो टीवी चैनल्स के कारकुनों के लिए है। इसी तरह डिजिटल मीडिया पे काम करने वालों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा। जो डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करने वाला हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता होगा, उस कोड ऑफ कंडक्ट को पूरा करने की हामी भरेगा, वो PFJ का मेंबर बन सकेगा। तो इसलिए एक तो डिजिटल मीडिया के हवाले से हमने ये फैसला भी कर लिया है। इसी तरह मौजूदा पीका लॉ के हवाले से मैं बात जरूर करना चाहता हूं कि हम कह चुके हैं कि PFUJ ने इसके खिलाफ प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू कर रखी है। अभी हमारी दो महाजों पे लड़ाई है। एक लड़ाई हम अदालतों में लड़ रहे हैं, एक लड़ाई हम सड़कों पर लड़ रहे हैं और दोनों साथ साथ चल रही है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की अदालतों ने भी नेशनल असेंबली की तरह या सेनेट की तरह इस पर ठप्पा लगा दिया तो फिर हमारे पास सड़कों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। लेकिन आज के इस BDM के इजलास में PFUJ ने पीका के हवाले से शिकवाइज अपना एक पेपर तैयार किया है
जिसको चंद दिनों के दौरान हमारी कमेटी हतमी शक्ल देगी, वो लेकर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास वंस अगेन जाएंगे, सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, वकला के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इसमें कौन कौन से शिक्के जो है वो इंसानी हकूक से मुसादम है, इंटरनेशनल लॉ से मुसादम है, प्रेस फ्रीडम से मुसादम है, और कौन सी वो जो है जो एक दफा फिर पाकिस्तान की मीडिया का गला घोंटने के लिए बनाई गई है। हमें अपनी इस एडवोकेसी के जरिए उम्मीद है कि इन सबको कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता फिर भी हमें ये टारगेट ना हासिल हुआ तो फिर हमारे पास वो आखिरी अरपा है कि हम पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के उन कारकुनों से जो हकीकी पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो प्रेस फ्रीडम, इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों पर यकीन रखते हैं, वकला के पास जाएंगे और पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट के साथ मिलकर ये कॉल देंगे कि हम सब ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने के लिए बैठना है और वो धरना फिर उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात और ये काला कानून वापस नहीं होगा। अजीज साथियों, इसके साथ साथ जो मुआशी बहरान है जिसका सामना मीडिया वर्कर को है कि अखबारात के लिए 9th वेज बोर्ड जो है उसका ऐलान होकर अब उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, अभी तक वो नहीं हुआ। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर अखबारात के लिए 9th वेज बोर्ड जो है वो कायम किया जाए और इसी तरह जिन्होंने 10-10 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया उनके हवाले से भी हम अपनी पहली मीटिंग में एक लाहे अमल बनाएंगे ताकि हम अपने वर्कर के मुआशी हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सके और जो हमारी दूसरी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके। हम इन दोनों चीज़ों के लिए आज तैयारी करके उठेंगे पहली मीटिंग में, और जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जारी होगा इंशाअल्लाह ताला वो इन सब मसाइल का अहाता करेगा। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।